हाँ सर स्टार्ट हो गया. Nadir studies in 8th class and we usually chat informally. His only expertise is that he loves mathematics and knows how to use GeoGebra. Once he asked me, "What is a complex number?" Being very impatient and without waiting for my answer, he asked, "But first tell me what is an imaginary number?" And in the same breath, asked, "What is this nonsense known as iota, represented by the small letter I?" My usual answer was that I don't know, but let us discover these strange creatures by drawing them on GeoGebra. He found the complex number command and have drawn it as a point on XY plane. ये है कॉम्प्लेक्स नंबर कमांड. हाँ हाँ. हाँ जी जी. The algebra window told him that this point is in effect 1.5 plus 2 iota. ये अच्छा. ये अलजेब्रा विंडो है. हाँ, और पॉइंट पॉइंट ये पॉइंट लगा हुआ है, इसको कह रहा है 1.5 ये x 1.5 एक्स 1.5 है प्लस 2. और y2 हाँ है. और 2y. ठीक है ना. और इसे 1.5 प्लस 2 iota कह रहे हैं. हाँ जी. अब अच्छा. अगला अगला बताओ. हाँ. I can see the disappointment on his face when he said it is a point in XY plane. इट इज Then why such जस्ट जस्ट अ पॉइंट. just a point in XY plane? Then why such strange names are associated with it? And what is iota? I told him to look at the coordinates of the point. He could well recognize that the x coordinate is 1.5 and y coordinate is 2. But then he was curious that the algebra window of the GeoGebra says that it is 1.5 plus 2 iota. What is the justification and meaning of iota? He thought about it and then answered himself that iota might be telling us that it is the y component. So iota is just a notation. So तो that इज means तो इज हाँ आयोटा इज आयोटा हाँ इज हाँ आयोटा. अच्छा ठीक है. नोटेशन. जस्ट अनोट इज आगे वाला हट जाएगा अयोटा के आगे इज जो लगा हुआ है. So that means iota is not a number, it is neither an operator. It is just a reminder that the number associated with it is the y coordinate. I kept quiet throughout his process of imagination and he was thinking aloud so that I can make notes. Thanks to Nadir, I have never experienced this luxury of discovery. I kept quiet as usual, expecting him to do more and more by himself. Then he somehow found the urge to draw a perpendicular from the point to the x and y axis. He did not tell me why he did that. Later, when I conducted this experiment with other children, when they are stuck, they try to do something which may help them find more meaning. I asked Nadir why he did it. In fact, I sort of ridiculed him, and he said that he has just drawn the x and y components of the so-called complex number or that point. Then I first saw some excitement on his face when he found the urge to draw a line from the origin to the point. By mistake or by purpose, he has drawn a vector instead of a segment, and I urged him not to replace it with a segment. Usually he does not comply with my suggestions, but surprisingly he did so. I asked him why he wanted to draw a segment, and he said now the Pythagoras theorem is applicable. I said, so what? हाँ जी. अब बताओ. अच्छा सर आगे करें. Nadir asked me if the x component of the vector will be cos of the angle between the pink and x axis. I said, why not verify it from GeoGebra himself? अब ये मुझे I के करके दिखाना है. मुझसे नहीं हो रहा था ये. अच्छा अच्छा. I said, no, why not verify it from GeoGebra himself? A smile came on his face when he verified that Pythagoras theorem holds, and we can write the x component of the pink vector as
cosine of the said angle. Similarly, we can write the y component of the pink vector multiplied by the length of the vector, and this is true for the y component of the pink vector. We can Now a flash. and we can write the y component of the pink vector as the sine. Sine भी तो होगा ना? हाँ 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 हाँ, sine As y a component sine multiplied by the length of the vector. as a sine of the angle नहीं होगा, sine of the angle, Multiplied by sine sine of of the angle. of the of the angle. हाँ जी, अच्छा, and यहाँ this तक is true. समझ आ रही है ना कि यहाँ तक हाँ तो जी हाँ जी बच्चा कर सकता है ना? हाँ जी हाँ जी। है एंड हाँ जी, जिसको सर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का पता हो वो तो इजीली कर सकता है यहाँ तक। मतलब ये कि ये लाइनें ड्रॉ करना y कंपोनेंट की और x कंपोनेंट की, ये तो एक तरह का मतलब एक वैसी अर्ज होती है ना कि हम ड्रॉ कर दें। हाँ 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 जी क्या ख्याल है? हाँ सर। हाँ जी, अच्छा, and this is true for the y component of the pink vector. Now a flash came to Nadir. He said, if z1 has unit length, then we can write z1 is equal to cos of theta, and अच्छा, z1 cos of theta plus iota sin of theta. हाँ जी, ये अब यहाँ पे बहुत बड़ी लीप आई है। हाँ ये अब तुम देखो जरा। even if z1 is larger or smaller than 1, we can adjust the x and y components appropriately. So Nadir discovered something great. Z1 is equal to cos theta plus iota sin theta. Without knowing what iota is, Nadir has almost discovered the Euler formula, known as the most beautiful formula in the world. हाँ जी, अब बताओ। हाँ सर, ये तो वाकई में सर, ये कॉस थीटा, कॉस और साइन जो है ये तो हमने सिर्फ यूलर फॉर्मूला में देखे थे। हाँ मैंने कहा ये तो हमने कॉस और साइन को कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ यूलर फॉर्मूला में ही देखा था, हाँ जी, हाँ जी, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर में तो नहीं देखा था। हाँ जी, यहाँ तो उसे वेक्टर की फॉर्म में उसने देख कर किया है ना सारा कुछ ये। हाँ 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 मतलब पाइथागोरस थ्योरम का भी उसे ख्याल आया। वो भी हम लिख सकते हैं कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस जो भी हाँ ए, और एक उसका ख्याल आया उसे पाइथागोरस थ्योरम का, और एक उसको ये ख्याल आया कि ये अगर हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं 1.5 प्लस 2 तो इसका हाँ मतलब यूनिट वेक्टर के केस में यूनिट वेक्टर में सारे 1 होंगे, तो कॉस थीटा प्लस एटा साइन थीटा। ठीक है, हाँ हाँ उसको नहीं पता एटा क्या है, जी, उसको नहीं पता कि एटा क्या है। लेकिन ये चीज ढूंढ ली उसने हाँ ट्रिग्नोमेट्री से सिर्फ। हाँ जी, ये तुम तो कर सकते होगे ना? हाँ सर, ये तो किया जा सकता है, मतलब इसमें तो कोई मसला नहीं है वैसे करने में, लेकिन अच्छा ये तरीका बड़ा मजे का है। अच्छा, अब हाँ अच्छा, I asked Nadir, what have you done? What you have done is great, but what is iota? And he replied, let me play with it. I asked him, what does that mean? And he said, let me add and subtract two vectors as shown. Acha, he said it is cool. The x part of the two vectors are added in case of addition, and y parts are also added. And in case of subtraction, they are simply subtracted. जैसे ये इन केस ऑफ एडिशन दो बार आ रहा है, एक दफा बीच में आ रहा है, एक दफा एंड में आ रहा है। In case of subtraction, they are simply subtracted. हाँ
ठीक है, यहाँ तक भी कर सकते हो तुम। हाँ हाँ, जी, हाँ जी। मसला तो कोई नहीं है ना, नहीं अलजेब्रा नहीं सिखाने की जरूरत तो नहीं है। नहीं, कोई उनसे जरूरत नहीं है। अगर वेक्टर को बस ड्रॉ करके ऊपर ही दिखा देते तो वो ज्यादा अच्छा था। तो ये ड्रॉ तो किया ना। नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ सर, ये दूसरा वेक्टर है जो नीचे है, इसकी टेल को उठा के अगले वाले के हेड पे रख दे तो वाजे नजर आ जाता कि ये इस टेल को तरह रख, से। वो मैं करने लगा हूँ, आगे चलो। ठीक है। अच्छा। यही He कह रहे थे found ना तुम। something, हाँ ये he found something more. The complex number are behaving like vectors in case of addition and subtraction. हाँ सर, ऐसे ही होते हैं ये तो। हाँ बड़े मजे के तरीके से ढूंढा उसने। हाँ सर मैंने कहा बड़े मजे के तरीके से ढूंढा उसने ये। हाँ। अब वो अच्छा। सब्ट्रैक्शन एडिशन, अब वेक्टर्स पे आ गया वो। हाँ अब वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को वेक्टर की तरह से इंटरप्रेट कर लिया। मतलब उसने आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती जा रही है ना उसकी, तो हाँ उसकी जो डेफिनेशन है या जो उसकी फीलिंग है वो तब्दील होती जा रही है। हाँ जी। इसी को नॉलेज, ग्रोथ ऑफ नॉलेज कहते हैं ना। हाँ हाँ। ठीक है। आगे चले सर। He wanted to discover more. The next logical choice is multiplication or division. हाँ। अच्छा। अब मैंने यहाँ लिखा नहीं था, मेरे पास टाइम नहीं था, तो हमारे ठीक है। पास वन वेक्टर है जिसका रियल पार्ट मैंने लिखना है, जीरो है। वन है, वन है। रियल पार्ट वन है और इमेजिनरी पार्ट जीरो है। हाँ जी। उसको हमने Z1 से ही जब ज़रब दिया तो वो Z8 बन गया। नहीं नहीं सर, जेड वन से नहीं, आयोटा से दिया होगा ना तो वो ऊपर एओटा गया। से ज़रब दिया, एओटा से ज़रब दिया वैसे Z1, हाँ एओटा से ज़रब दिया तो वो Z8 बन गया। हाँ अब मैं उससे कहूंगा कि इसका मतलब ये है कि ये तो इसको 90 डिग्री रोटेट कर रहा है। हाँ, मल्टीप्लिकेशन में तो ये हो रहा है। हाँ, एटा से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है। हाँ जी, हाँ जी। फिर मैं उससे कहूंगा कि एक दफा और हम रोटेट करते हैं। हाँ तो रोटेशन ही हो रही है। हाँ, तो एक दफा और रोटेट करते हैं तो ये आ जाता है, अच्छा, और क्या आ जाता है, एओटा ये सर -1 पे रहता है, आयोटा जीरो रहता है वापस। -1 आ जाता है। हाँ, हाँ ये, अच्छा यहाँ ये वन था। हाँ, हाँ जी। तो वन को एओटा से ज़रब दिया तो ये एओटा आ गया। हाँ हाँ हाँ, 90 डिग्री शिफ्ट आ गया। हाँ। अच्छा, अब एओटा क्या है ये हमें पता नहीं है, ये तो वर्टिकल स्केल पे है ना, रियल नंबर स्केल पे तो नहीं है। हाँ हाँ। जी सर। हाँ तो जी, हाँ फिर जी। एक दफा फिर एओटा से ज़रब दिया तो एओटा स्क्वायर -1 आ गया। हाँ यहां से हमें एओटा स्क्वायर पता चला कि वो -1 के बराबर हाँ। है। अब यहाँ से वैसे हम से लेकर आएंगे कि एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सर अब मुझे ना, अब मुझे दिल कर रहा है कि जियोजेब्रा तो हर बच्चे को यूज करना चाहिए। पहले अब नहीं करता बेचारे था। बच्चे कितनी चीजें मिस कर रहे हैं अब। हाँ, मैं कह रहा हूँ उनको, जो जिस तरीके से स्कूल से पढ़ा रहे हैं कितनी चीजें मिस करवा रहे हैं। नहीं तो यहाँ तक तुम जो पहुंचे हो बगैर किसी मदद के पहुंचे हो ना। हाँ सर, ये कोई भी बच्चा पहुंच सकता है अगर उसको खेलना आ जाए सिर्फ इस अच्छा, तरह अब जैसे नादिर एओटा खेल रहा है। स्क्वायर निकल आया। हाँ, हाँ हम उससे कहेंगे कि तुम एओटा स्क्वायर, तो इसका मतलब ये जो है ये एओटा है। हाँ, हाँ जी। ये भी पता चल गया हमें। जी जी। और लेकिन यहाँ हमें एओटा की वैल्यू पता नहीं है। हाँ, हाँ बस इतना यहाँ पता है। हमें एओटा स्क्वायर की वैल्यू पता है। हाँ जी। अच्छा, तो एओटा अगर निकालना हो तो मैं कहूँगा निकालने की कोशिश ना करना, दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा। एओटा हाँ स्क्वायर तक ही रखो अपने आप को। हाँ। हाँ, हाँ जी। सो वी हैव रीच्ड एओटा, के एओटा क्या होता है, वी हैव, हाँ
we have partially derived the Euler formula and we have defined iota here. हाँ जी। और ये हमने कुछ भी बताए बगैर, इमेजिनरी नंबर का नाम लिए बगैर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात किए बगैर हमने ये सारा कुछ किया है। क्या ख्याल है? हाँ, सिर्फ वेक्टर्स के जरिए। हाँ जी। सर। तो ये है ना मजे की चीज। हाँ हम्म। सर, किसी भी बच्चे को अगर ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बहुत पता है तो वो ये काम आके कर सकता है, और उसको जियोजेब्रा यूज करना आता हो। और ये ये तो इसके एफएससी या बीएससी में, मतलब वहाँ वहाँ जाके इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स प्लेन वगैरह पढ़ते हैं, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, वो यहीं से समझ सकता है। हाँ, 8वीं क्लास का बच्चा जैसा नादिर है, कोई और भी 8वीं क्लास का बच्चा कर सकता है अगर उसको इतना ही लेवल किया जाए। अच्छा, अब तुम्हारे लिए चैलेंज है, तुम 5 मिनट के लिए सोच सकते हो हाँ कि सर, बताएं। हमने यहाँ पर ये चीज तो कर दी है, ये चीज तो कर दी है कि Z1 जो है वो cos थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा के बराबर है। हाँ, हाँ जी, ऐसे ही है। ये आधा प्रूफ है यूलर का। हाँ जी। जो उसका इसका बाकी हिस्सा है वो ये कि हाँ इसको जी। एसोसिएट करना ई की पावर एयोटा थीटा से। हाँ जी। वो कैसे करेंगे? सर, ई की पावर आयोटा थीटा से। तुम्हें कभी किसी टीचर ने इस तरह कराया है? नहीं सर। सर, स्कूल हाँ? में तो मुझे कभी पता ही नहीं था कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते नहीं, कॉलेज में आके, यूनिवर्सिटी में आके। हैं। सर, वहां पर वहाँ वहाँ भी नहीं पता चला। हाँ, वहां भी नहीं पता चला है, तो अभी पता चला था मुझे। अब जाके तो मुझे पता चला। नहीं तो ये क्यों नहीं करते ऐसे? जियो जबरा नहीं होता मैं भी उनके सर। पास? यहाँ तो जियो सर जबरा कोई कॉम्प्लेक्स हमने फंक्शन भी इस्तेमाल नहीं किए। सर, वो खुद भी रेस में लगे होते हैं और बच्चों को भी लगाया होता है। रेस में लगे होते हैं, रेस में नंबर लेने की। यार, प्लेट की रेस में लगे रहे, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि ये जब नंबर इम्पोर्टेंट हो गए, फिर ये क्या, इसका क्या फायदा, क्या है ये, क्या चीजें, है और क्यों है। ये दोनों चीजें एक्सक्लूसिव नहीं है। ये होगा तो ये होगा, हाँ ये सर। होगा तो ये नहीं होगा। जी सर, लेकिन लेकिन जब उन्होंने उनके शौक ही ये नहीं, शौक उनका सिर्फ नंबर है, तो फिर इधर सर खपाने की किसको जरूरत। नहीं, लेकिन अगर हो जाए तो कोई मुजायका नहीं है, ये एंजॉय नहीं हाँ कर रहे तो। सर, कितना कितना अच्छा हो ये अगर हो जाए तो। नहीं, अगर हो जाए तो एंजॉय नहीं करेंगे वो? सर, बेहतरीन बहुत। अच्छा, अब ये चीज जो है ये मैंने किसी किताब से नहीं पढ़ी, हाँ जी। ये नादिर की कन्वर्सेशन से मिला है मुझे। हाँ। हाँ जी सर। सर, नादिर का भी पार्ट आ गया हाँ, किताब में। अब ये बताओ ना, अब असल चैलेंज तुमसे मैं कह रहा हूं कि ये हाँ cos थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू ई की पावर एयोटा थीटा, ये कैसे आएगा? सर, ये पावर सीरीज से। यार, अब ये तुम ज्यादती कर रहे हो ना फिर बच्चों के साथ। हाँ। cos थीटा और sin थीटा। वो आ गए?
उनके साफ ससुर साबुन से हाथ धोए करो ना। हाँ जी, अब आप जरा दिमाग लड़ाएं, सानू मगज लड़ाने नहीं आते। हाँ समीर साहब, and keep the simplicity and elegance of this approach. आवाज आ रही है तुम्हें? हाँ जी सर। हाँ, तो keep the simplicity and elegance. You may share the screen and write something if you want. धोने को डाल रही हो? हाँ नीचे ही डाल दो, अभी इधर नीचे ही डाल दो। ये पानी भी भर देना, ये दूसरी पानी की बोतल भी ले लो। How to keep the simplicity and elegance, हैं? सर ये सर ई की पावर एक्स की डेफिनेशन हमारे पास दो ही है ना सिर्फ? क्या? एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाली, एक पावर सीरीज वाली। नहीं नहीं नहीं, एक और भी है, और मेरी कौन नजर भी है? आ रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो भी कॉम्प्लेक्स है काफी। अच्छा। हाँ, तुम साइन ऑफ थीटा को ई की पावर में लिख सकते हो। साइन ऑफ थीटा को ई की पावर में? हाँ जी, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू ई पावर थीटा, या प्लस है या माइनस है ई पावर थीटा डिवाइडेड बाय एटा। एक मिनट सर, सोचने से। पीडीएफ से देख लो ना फॉर्मूला। अच्छा। ये तुम मुझे नोट पैड में लिख के भेज देना कि साइन थीटा किसके बराबर होता है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल्स, और साइन थीटा होता है इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पता है तुम्हें? पता है तुम्हें समीर? सर मैंने अभी देखा है। हाँ, हाँ सर, मैं अभी देखा ये। साइन थीटा जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर की टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है। सर अजीब हाँ, अजीब नहीं है? अजीब तो बहुत सारी चीजें होती हैं।
कहीं मुझे नोट पैड पे लिख के दिखा दो ना जो तुम कर रहे हो, ताकि स्क्रीन शेयर कर लो तुम। या इससे भी कोई एलिगेंट, पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। क्या होता है साइन थीटा के बराबर होता है ई पावर एयोटा थीटा। सर ई पावर आयोटा थीटा माइनस ई पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइड बाय 2 आयोटा। हाँ अच्छा, अब ये साइन की वैल्यू और कोसाइन की वैल्यू इसमें डालो ना, यही तो वो एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। एक मिनट सर, अच्छा ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा ओवर 2 आयोटा, और इसको आयोटा से मल्टीप्लाई किया है तो आयोटा कट गया, बाकी रह गया बस ओवर 2 कॉज था ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा ओवर 2। सर मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ, लिखता है तो सर। हाँ सर, ई की पावर आयोटा एक्स माइनस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स, अब नजर नहीं आ रहा, हाँ अब आ रहा है। सारा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, ये होता है साइन ऑफ एक्स, और ई की पावर तो यहीं पर आयोटा इसके नीचे एओटा नहीं आता, 2 एओटा, अच्छा इसके नीचे एओटा से वहां भी। ओहो, 2 एओटा नहीं है। 2 आयोटा है सर। हाँ? तो ये फॉर्मूला कभी नहीं देखा, ये जी सर। तुमने ये फॉर्मूला कभी नहीं देखा था हैं? नहीं सर, मैंने नहीं देखा। अजीब बात है। अब अगर मैं हमारे पास था साइन कॉज ऑफ एक्स प्लस आयोटा साइन ऑफ एक्स, क्या कौन करवा रहा था, कौन करवा रहा था? दूसरी जिठानी नहीं आई? नहीं। तो बाजी अरमान किधर है? बाजी अरमान घर थी। क्यों? उनको भी तो करवाना चाहिए था ना। वो है ना घर पे, काम ऑफिस में है। ऑफिस से छुट्टी ले लेती। हाँ।
अब तुम्हें नहीं लग रहा कि यूलर फॉर्मूला तो यार हलवाई चीज थी? हाँ है समीर? हाँ जी सर। अब तुम्हें नहीं लग रहा कि इसमें यूलर तो के मुश्किल। फॉर्मूले को बड़ी आसानी से ड्राइव किया जा सकता था? हाँ है? लेकिन सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि साइन अक्ष पर ये इसमें कैसे आया, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्यों है? यार अब ये तो मुझे नहीं पता ये किसने किया था, इसकी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। और ये साइन ऑफ एक्स जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में तो नहीं है? कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, डिवाइड हो रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो ई पावर एयोटा एक्स माइनस ई पावर माइनस एयोटा एक्स डिवाइडेड बाय 2 एयोटा, ये अगर हम करके देखें तो साइन एक्स आ जाएगा। उसको प्लॉट करके देखें अगर हम उसके ऊपर जियो जबरा पे। करता हूँ सर। पहले ये तो कर लो ना। हाँ अच्छा, यहाँ तक पहुँच गए। अच्छा, ये तो दोनों नेगेटिव वाली टर्म्स तो कट जाएंगी दोनों तरफ, अगली टर्म लिख ये दो जो यहाँ। पावर वाली सिंप्लीफाई स्टेप्स भी साथ साथ लिखते जाओ। हो जाएगा 2। और सर ये बच जाएगा सिर्फ हमारे पास ई की पावर आयोटा एक्स। आ जाएगा। हाँ सर ये आगे। नहीं लेकिन ये तो टू टू भी तो है, डिवाइडेड बाय 2 भी तो है ना? हाँ है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है ना 2 से। कहाँ से? अच्छा 2। हाँ ये दो ऐड हुए हैं तो टू की पावर आयोटा एक्स हो गया, और नीचे डिवाइड भी 2 से हो रहा था। लेकिन एयोटा माइनस एक्स जो है वो तो नहीं 2 से डिवाइड हुआ। वो तो सर कट के निकल गया, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों थे ना, तो वो तो पहली कट टर्म गए आपस में। पहली टर्म देखो ना, पहली टर्म जो लिखी है तुमने, ई की पावर एयोटा एक्स प्लस ई की पावर माइनस एयोटा एक्स। हाँ जी, डिवाइड बाई 2। और आगे सर ये साइन की आगे ई की पावर आयोटा एक्स माइनस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स डिवाइड बाई 2। और हाँ जी, साइन आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। ये भी हो गया मसला हल, है ना? हाँ तो ये यूलर फॉर्मूला पूरा ड्राइव हो गया। हाँ, हमें सीरीज में जाने की हाँ जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ सर, लेकिन सवाल ये है कि ये साइन और कोसाइन की ये वाले फॉर्मूले कहाँ से निकले? अच्छा वो तो देखते हैं अब ना। ये देख रहे हैं। ये कहो कि ये मुझे मेल कर दो, ये जो है इसका फाइन। स्क्रीनशॉट कर दो। ठीक है सर। ओए ओए ओए, अभी तक तो बिजली नहीं गई, बाप उतार के ले गए वो। सोलर पैनल तो फिर उतार के ले गए। क्यों? फिर खराबी हो गई उसी तरह। तो जो डायरेक्टर बच्चे फुल गलत, ग्राउंड में कुछ पता नहीं। मैं तो मामला काफी फुट गया वहाँ पर। मैं चीफ इंजीनियर से हो गया था, मेरा स्टूडेंट उसको करवाया तो भाई वो जाने
उन्होंने बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि आप लेके जा सकते हैं बहन को अपने साथ, और ये आपका घर भी चेक करेगा, बाकी घर भी चेक करके दिखाएगा कि हमारी तरफ से कोई गलती नहीं। और अब 240 से भी कम आ रही है। हाँ, अब जो जब ओए तू क्या देख रहा है चुप के? बड़े सुकून से बैठा हुआ है, हैं? सो के उठा है? सो के उठा है? हैं? सो के उठा है? कर दिया आपको स्क्रीनशॉट। सर अशरफ, हाँ जी। सर वो स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया आपको। अच्छा सर, मैंने एक चीज दिखानी है। अब सर बस रिकॉर्डिंग बंद कर दो ना। चलो बंद कर। तो जॉब अगर नहीं बनाएगा तो